Welcome students. Welcome to computer class. I am your teacher Nitish Kumar. So this is the video for class 7. आज हम लोग क्लास 7 के वीडियो बनाएंगे और आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ाएंगे. So this is the cover of your book. Today we read chapter number 5. Looping and graphics in a small basics. So first of all we have to understand what is small basic. A small basic is also a framework, or you can also say it's a work area which provides so many tools to do so many work. It's also similar to the Visual Basics, but it is a study software. This is a study software. It's also available on internet free. It's also available on internet. It's free available है internet पे. क्यों available है free? Because it's only for a study purpose. It's only for a study purpose. ये study purpose के लिए free available है on internet. And if we read the small basic, then it will help us in Visual Basic. अगर हमको आगे जाके Visual Basic पढ़ना है, then it will help us. So we have to move forward. First of all, the introduction. Today we read loop. Loop is a set of instruction that execute again and again. Loop क्या है? एक set of instruction, that means a set of command है किसी काम को करने का जो again and again होता है. For example, when you riding a cycle, you continuously push your pedal. Okay, continuously run the pedal of the cycle. हम continuously उस pedal को दबाते रहते हैं या चलाते रहते हैं. किसको? साइकिल के. Why? Because we have to move forward. हमको साइकिल चलाना है, आगे बढ़ना है. So उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पैडल को कंटिन्यूसली दबाते रहते हैं और वो हमको आगे बढ़ाता रहता है. So this is called as loop. A small basics provides two types of loop. A small basic हमको कितने तरह के loop provide कर रहा है? For loop and while loop. For loop and while loop. So today we read both type of loop, and we also have a practical session of this loops. हम लोग इसका practical session भी देखेंगे. तो let's go for the for loop. The for loop is generally used as a counter loop when you know exactly how many times you need to execute the loop. For loop में हमको ये पता है कि हमको exactly कितने टाइम तक काम करना है. फॉर एग्जाम्पल हमको एक टेबल लिखना है तो हम उसमें 10 तक का 1 से लेकर 10 तक का यूज़ करेंगे. ओके, सो या फिर हमको एक नंबर लिखना है. मान लीजिए हमको 40 स्टूडेंट्स का डेटा देना था तो हमको पता है हमको 1 से 40 तक जाना है. So on that case, when we know how many times we have to execute the loop, then we use the for loop. Okay, now the syntax. For control value, for then control value equal to initial value to last value. Initial value, the starting value which you have to want. जो भी starting value हमको देना है वो हमारा initial value हो जाएगा. And then जो हमारा last value जहाँ तक हमको जाना है वो लास्ट वैल्यू हो गया. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा 40 स्टूडेंट्स, सो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये पहला वाले को तो प्रिंट करेगा नहीं. ओके, और अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट 2 से प्रिंट करना शुरू करेगा. सो इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे. एंड देन लास्ट वैल्यू, देन द स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉर a इक्वल टू 0 to 10, स्टेप 1, राइट टेक्स्ट विंडोज डॉट राइट लाइन. ओके, चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं. स्टेप टू स्टार्ट स्मॉल बेसिक इन विंडो 7. हाउ कैन वी स्टार्ट स्मॉल बेसिक्स इन विंडो 7? एज वी ऑल नो, इन आवर लैब वी यूजिंग विंडोज 7. In our labs we are using Windows 7.
सो विंडो 7 में हम लोग स्मॉल बेसिक्स को कैसे स्टार्ट करेंगे ये हम लोग देखते हैं. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. वेयर वी हैव द स्टार्ट बटन ऑन दैट एरिया. इस एरिया में हमको स्टार्ट बटन मिलता है. क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम ऑप्शन. हम लोग कहाँ दबाएंगे? उसके बाद ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पे सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन स्मॉल बेसिक. उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे और स्मॉल बेसिक पे क्लिक कर देंगे. सो दैट इज द वे हाउ कैन वी स्टार्ट द स्मॉल बेसिक्स. तो चलिए अब स्मॉल बेसिक को स्टार्ट करके देखते हैं. आई एम यूजिंग द विंडोज़ 8. मैं विंडोज़ 8 यूज़ कर रहा हूँ. सो फॉर स्टार्टिंग द स्मॉल बेसिक आई ऑल्सो हैव टू गो इन स्टार्ट बटन. माई विंडोज लुक लाइक दिस. सो इफ़ आई डोंट हैव द स्मॉल बेसिक एट हियर. अगर हमको स्मॉल बेसिक यहाँ नहीं दिखता है तो हम क्या करेंगे? ऐसे मुझे यहाँ दिख गया है. मान लीजिए मुझे नहीं दिखता है तो मैं क्या करूँगा? मैं सीधा लिख दूंगा. देखा, मैंने यहाँ सिर्फ स्मॉल लिखा है एंड आई हैव माई स्मॉल बेसिक्स. सिंपली क्लिक द एंटर. माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक इज स्टार्टिंग. इट्स टेकिंग फ्यू सेकेंड्स. ओके, नाउ आवर विंडो इज स्टार्टेड. थोड़ा सा विंडो बड़ा कर लेते हैं. सो हम एक इजी सा फॉर लूप का एक एग्जांपल लिखते हैं. चलिए देखते हैं. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज अ फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क का हेल्प यूज और इसका फ़ायदा क्या होता है? व्हेन यू यूजिंग फ्रेमवर्क तो आपको सब कुछ लिखना नहीं पड़ता. जैसे मैंने 4 लिखा है, मुझे 4 अपने आप मिल जाएगा यहाँ पे. ओके, एक प्रॉब्लम है, स्मॉल बेसिक इज केस सेंसिटिव. स्मॉल बेसिक क्या है? केस सेंसिटिव है. ओके, जैसे कि हम लोग हमेशा HTML के बारे में बात करते थे कि वो केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन स्मॉल बेसिक जो है वो केस सेंसिटिव है. विजुअल भी केस सेंसिटिव है. तो केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि इसमें जो रूल्स रेगुलेशन है, फॉर एग्जांपल 4 का F बड़ा होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है ना. तो उसी तरह से हमको यहाँ पे 4 का F बड़ा ही लिखना होगा. अगर आप छोटा लिखोगे तो ये लेगा नहीं. देखिए अपने आप यहाँ पे 4 मुझे मिल गया. ठीक है, और यहाँ देखिए ये कैपिटल में ही है. ठीक है, तो हम लोग को केस सेंसिटिव वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा. सो आई एम राइटिंग अ 4. कोई भी वैल्यू बनाना जरूरी नहीं कि मैं ए ही बनाऊँ. मैं I, J, K जो चाहे मैं बना सकता हूँ. मैंने I नाम का एक वैल्यू बनाया है जिसका स्टार्टिंग वैल्यू मैंने दे दिया है 1. ओके, कब तक चलेगा? जब तक ये कब तक चलेगा? टू 10 तक. हम इसको 10 तक चलाना चाहते हैं तो मैं 10 तक लिख दूंगा. ठीक है, उसके बाद कितने स्टेप में आप बढ़ाना चाहते हैं? ठीक है, अगर मैं स्टेप नहीं देता हूँ, ठीक है, तो ये बस उतना ही बढ़ेगा जितना इसकी लाइनिंग होगी या लिमिट होगी. मतलब कि 1 1 करके बढ़ेगा. ठीक है, अगर मैं स्टेप नहीं देता हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ले लेता है. ठीक है, अगर मैं स्टेप नहीं दूंगा, ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट 1 ले लेगा. लेकिन अगर मुझे स्टेप देना है तो मैं यहाँ पे एक स्टेप दे देता हूँ. स्टेप के बाद इक्वल टू नहीं देना. स्टेप के बाद कोई भी नंबर देना. जैसे कि अगर मैं कुछ नहीं देता तो 1 ले लेता, लेकिन अगर मैं कुछ दे रहा हूँ तो उसके हिसाब से बढ़ेगा. ओके, तो मैंने यहाँ 2 दे दिया है, यानी कि ये हर बार 2 इंक्रीमेंट करके बढ़ेगा. और उसके बाद जो भी प्रिंट स्टेटमेंट मुझे दिखाना है वो मैं दिखाऊंगा. जैसे मैंने लिखा है टेक्स्ट विंडो. टेक्स्ट विंडो मुझे नीचे मिल गया. डॉट राइट लाइन. ओके, और ब्रैकेट में मान लीजिए फिलहाल मैं इसी आई को ही प्रिंट कराता हूँ. ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा? इंड लुक इंड 4. चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करा के दिखाते हैं. एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास रन बटन है. और इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ द रन बटन यू सिंपली क्लिक द F5 फ्रॉम योर कीबोर्ड. ठीक है, चलिए हम रन बटन को ही क्लिक करेंगे. ना यू सी 1 3 5 7 9, यानी कि हर बार 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है. अब मैं एक काम करता हूँ,
मैं यहाँ पे स्टेप को हटा देता हूँ। नाउ वंस अगेन, नाउ यू सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस बार ये पूरा प्रिंट हुआ है। ठीक है, बड़ा करने कोई फ़ायदा नहीं है, साइज उतना ही मिलने वाला। ओके, नाउ अगर हम यहाँ आई लिखे थे, यहाँ पे अगर हम कुछ नाम लिखते हैं तो क्या वो प्रिंट करेगा? चलिए देखते हैं, क्या वो 10 टाइम मेरे नाम को लिखेगा? मेरे ख्याल से तो लिखना चाहिए। ओके, इसने 10 टाइम्स मेरे नाम को लिखा है। क्या हम अपने नाम के साथ और भी क्या कुछ कर सकते हैं? मैं अपने नाम के साथ नंबर भी दिखा सकता हूँ। चलिए पहले नंबर दिखाते हैं, तो मैं पहले आई दे देता हूँ, एक स्पेस दे देते हैं, देखते हैं यहाँ पे उसमें कॉमा लगाने का रहा है। ठीक है, चलिए कॉमा लगा देते हैं, क्या दिक्कत है? मैंने एक कॉमा लगा दिया, कॉमा नहीं सटा के देना है। ठीक है, ओके ओके, दिस इज अ स्टडी वर्जन, ये एक स्टडी वर्जन है, इसलिए हम लोग सिर्फ एक ही वैल्यू को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक बार में। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए 2 वैल्यू प्रिंट, मैं 2 वैल्यू एग्जीक्यूट करा के रहूँगा। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, वाह। अब देखिए मैं एक ही फोर लूप से 2 स्टेटमेंट रन कराने की कोशिश करूंगा। 1 नीतिश, 2 नीतिश, 3 नीतिश। सो दैट इज द वे हाउ कैन वी यूज आवर लूप। तो यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी दिमाग भी लगाना पड़ता है। ओके, सो दैट इज द वे हाउ कैन वी यूज फोर लूप। नाउ वी रीड हाउ कैन वी यूज वाइल लूप। वाइल लूप को अब हम लोग यूज करके देखते हैं। तो मैं मैसेज को छोड़ देता हूँ क्योंकि वो हमारे काम आएगा, सिर्फ इसको हटा रहा हूँ मैं। वाइल लूप इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द कैप्शन, जो भी उसका हेडिंग है उससे स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके, जैसे कि मुझे पहले वैल्यू देना होता है इसमें, आई इक्वल टू, मैंने 0 दे दिया है इस बार। ओके, उसके बाद मैं नीचे जा रहा हूँ और इस बार मैं वाइल यहाँ लिख रहा हूँ। 4 में क्या होता था कि हम लोग डायरेक्ट 4 लिखते थे और शुरू हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे पहले वैल्यू देना है, इनिशियल वैल्यू, देन वाइल हम लोग शुरू करेंगे। नाउ वी हैव द वाइल हियर, वाइल दबा देना है। वाइल दबाते के साथ हमको यहाँ पे हिंट भी मिल जाता है कि वाइल लूप लिखा कैसे जाता है। ओके, आप अंदर भी वैल्यू दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने बाहर वैल्यू दे दिया है। एक ब्रैकेट के अंदर सारा काम होगा, तो मैं एक ब्रैकेट के अंदर चला गया हूँ और यहाँ पे मुझे आई है। कब तक चलाना है? तब तक चलाना है जब तक कि ये 12 के बराबर ना हो जाए। चलिए 12 के बराबर कर देते हैं इसको। सेम है, बस कुछ चीज़ें और चेंज करनी होगी हमें। जैसे कि हमको मैसेज के बाद इसका जो स्टेप है, ठीक है, इसमें स्टेप देना जरूरी होता है। ओके, आप चाहो तो आई प्लस प्लस भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन हम वैसा नहीं कर रहे। हम एक सिंपल वाला लगाएंगे, आई इक्वल टू ए प्लस, आप 1 दोगे तो 1 1 बढ़ेगा, 2 दोगे तो 2 2 बढ़ेगा। मैं 3 देता हूँ, चलिए। और इंट वाइल, लास्ट में इंट वाइल। नाउ वी हैव इंट वाइल। चलिए इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं क्या काम बनता है हमारा। लाइन नंबर 5 में गड़बड़ है। ओके, यहाँ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ओह सॉरी, यहाँ मैंने ए दिया है, यहाँ पे आई होना चाहिए था। ठीक है, तो जो भी गड़बड़ है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको एरर पढ़ना आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5.5 में गड़बड़ है, तो वहाँ मुझे मिल गया कि वो गड़बड़ था। ना यू सी 0 3 6 9 12। ओके, तो इस तरह से हम लोग वाइल लूप को लिखेंगे। ठीक है, अब वाइल लूप क्यों लिखते हैं? जब हमको नंबर ऑफ स्टेटमेंट नहीं पता होता, व्हेन वी डोंट नो द नंबर ऑफ स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेप, कितना स्टेप तक हमको जाना है, क्या काम करना है, तो इस तरह की सिचुएशन में हम लोग वाइल लूप का यूज़ करेंगे।
चलिए अब वाइल लूप को एक कंडीशन ऑपरेटर के साथ टेस्ट करते हैं हम लोग। तो ऊपर का स्टेटमेंट हम लोग सेम छोड़ देते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पर एक कंडीशन स्टेटमेंट लगाते हैं इफ़। कंडीशन स्टेटमेंट क्या होता है? इफ़। हम लोग 7 में पढ़े थे। इफ़ मैथ डॉट रिमाइंडर देन अगेन स्टार्ट अ ब्रैकेट इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट हमको और चाहिए जहाँ पे हम उस वैल्यू को देंगे, जैसे कि हमने आई रखा था, हम आई दे रहे हैं, कॉमा जो भी नंबर आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे 2 चाहिए तो मैंने 2 दे दिया है। ओके, और फिर वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। ब्रैकेट के अंदर ही अभी हमें इक्वल टू आई, जो भी आपका वैल्यू था वो आपको देना है, या फिर आप वैल्यू नहीं देना चाहते देन 0 आप दे दीजिए। उसके बाद हम लोग देन कमांड के यूज करेंगे, देन। ओके, फिर अपना जो भी स्टेटमेंट आपको देना था वो हम दे रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट को भी थोड़ा सा चेंज करेंगे इस बार हम लोग, आई प्लस। ओके, प्लस मतलब कि एक इंक्रीज कर जाओ, आई प्लस इन डबल कोर्स के अंदर हम लोग जो कुछ भी देंगे वो सिंपल प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर इक्वल टू दे रहा हूँ एक स्पेस के बाद इसलिए दे रहा हूँ ताकि वो थोड़ा सा स्पेस लगे वहाँ पे कि स्पेस है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे एक प्लस का सिग्नेचर और दूंगा और फिर से एक और डबल कोट शुरू कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इवेन, एक स्पेस देके। अगर मैं स्पेस नहीं दूंगा तो ये चिपका हुआ आ जाएगा इक्वल टू के साथ, सो ये बहुत अच्छा नहीं लगने वाला। फिर जब इफ़ आया है देन उसका भाई एल्स भी आएगा। वेयर यू हैव द इफ, उसका भाई एल्स पक्का होगा, चाहे वो लिखा हो या ना लिखा हो। ओके, और एल्स में भी हम लोग वही करेंगे, बस थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ऑड कर दूंगा, बस यहाँ पे ऑड कर देना। तो ये क्या कर रहा है, इवन और ऑड वैल्यू चेक करके हमको बताएगा कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। और यहाँ पे मैं +1, क्योंकि 1 इंक्रीमेंट होना चाहिए तभी अच्छा लगेगा। ओके, चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं ऊपर से नीचे तक। आई का इनिशियल वैल्यू 0, वाइल में आई का जो लास्ट वैल्यू वो हम लोग 12 रखा है। हम लोग एक कंडीशन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम लोग लिखे हैं मैथ नाम का एक कमांड है जो रिमाइंडर वैल्यू चेक कर रहा है आई के साथ, ठीक है, जो कि हमेशा 2 के साथ इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। कंडीशन चेक हो रहा है आई इज़ इक्वल टू या फिर आई डिवाइडेड बाय 2, मतलब इस तरह से जो भी चेक किया जा रहा है। अगर रिमाइंडर 0 होता है, मतलब आई जो भी है उसको डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद अगर हमको रिमाइंडर 0 मिल जाता है, ठीक है। इवन कौन होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो आई डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद अगर हमको रिमाइंडर 0 मिल जाए, ओके, रिमाइंडर 0 मिल जाए, देन तभी टेक्स्ट, मतलब कि जो भी हमको अपना स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, तभी आई जो है उसमें एक वैल्यू प्लस कर दो, आई जो भी है उसमें एक वैल्यू प्लस करके इक्वल टू, और उसमें एक स्टेटमेंट और ऐड कर दो जिसका नाम होगा इवन, ठीक है। तो जो भी नंबर होगा वो इक्वल टू इवन है। और उसी तरह से हम लोग एल्स के साथ भी किए हैं। तो चलिए देखते हैं ये काम करता है या नहीं। लाइन नंबर 8 में गड़बड़ है, ओके, लाइन नंबर 8 में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, मुझे लग रहा है ओके, नो प्रॉब्लम, अभी सुधार देते हैं। I know. So there is a one more statement we have to write. It's end if ये देना जरूरी है, वरना पता कैसे चलेगा कि एंड बंद हो गया है, ठीक है। और लूप स्टेटमेंट शुरू है हमेशा। अगर हम इफ़ को बंद नहीं करेंगे तो उसी में घूमता रह जाएगा, इफ़ एल्स, और फिर उसके बाद फिर से एल्स इफ वगैरह ढूंढना शुरू करेगा। सो इस तरह के सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग एंड इफ लगा देंगे,
जो उसे पता चल रहा है कि वो बंद हो गया है। Now you see 0 equal to even, 1 equal to odd, 2 equal to even. Okay, so that is the way how can we use the conditional operator with while loop, and we also use the conditional operator with the for loop. हम लोग for loop के साथ भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं लगा सकते, कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे for loop का सारा कमांड डाल देना है। ठीक है, मैं डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने 4 दिया है, I equal to 0, ओके, 2, 12, और इसमें इनिशियल वैल्यू तो दिखाना नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से बंद कर दूँगा। ओके, और यहाँ पे मैं एंड 4 कर दूँगा। ओके, मैंने एंड 4 कर दिया है, मुझे लगता है और कुछ करना होगा, चलिए देखते हैं। नाउ यू सी वी हैव द सेम वर्क, हम लोगों ने सेम वर्क ही किया, बस वाइल के जगह हमने 4 कर दिया। सो दैट इज़ द वे हाउ कैन वी रीड द डू while loop and for loop. So thank you for watching this video. In next video for same chapter we use the graphics. Okay, next chapter में हम लोग graphics करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. So wait for our next video.